Good morning, students. So, today we will start our geography book, chapter number 2. But before starting that chapter, please take out your books and we will discuss the things which we have learnt in the first chapter of geography. Okay, so you know very well that the first chapter name was, yes, resources. In first chapter, we have learnt about resources now. So beta, if we discuss about resources, then resources are the things or substance which satisfy our needs, like water for drinking we use now, like food for satisfy our hunger we eat, and next thing like your books, your pen you use for your study, means the all things satisfy your needs, mean everything in your house, in your school, in around in your society, all things which satisfy your needs, even your teacher also, your doctor also, all things are resources. Okay, and the next thing we had discussed about the types of resources also. Think how many types resources are there? Yes, three: natural resource, man-made resource, and human resource. Okay, we have learned about these three resources also. So beta, in this chapter, means in second chapter, we will learn about 4-5 resources. See in the chapter name, if we talk about the chapter name, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So in this chapter we will read about these 4-5 resources, means land as a resource, soil as a resource, water as a resource, wildlife as a resource, and vegetation as a resource. Okay, so first if we talk about the land. Okay, so beta, one thing is here that land is fixed, and if we talk about our earth, so our earth, this, see, suppose this is our earth and this 30%, this 30% area covered by land, and this remaining 70%, this is covered by water. Okay, and it is fixed also, we cannot change it, means it is limited also, we can say. So up to here it is clear that firstly in this chapter we will discuss about land. So first thing, total earth surface area 30% covered by land, and that is fixed also, that is limited also, means we can not expand that area. Okay, now next thing, one story is given in your book in the starting. When you open your book, you will find out that about Mamba and Peter, one story is given. So with the help of that story, what they want to say, beta, they want to say that the different resources, means water, soil, climate, these are unequally distributed over the earth. मीन्स कहीं पर वाटर इजीली अवेलेबल है, कहीं पर वाटर इजीली अवेलेबल नहीं है. ओके, लाइक इफ यू टॉक अबाउट माम्बा, तो जो उनका एरिया है वहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल नहीं है, माम्बा को बहुत दूर तक जाना पड़ता है वाटर लेने के लिए. और सेकेंड थिंग, जो उनकी लैंड है वो उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी नहीं होती, ठीक है, वो बहुत लेस क्रॉप्स होती हैं उनकी. एंड ऑन दी अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट पीटर, सो पीटर जो है वहाँ पे वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो इजीली अवेलेबल है, ठीक है. और जो उनकी सेकेंड, उनकी जो सॉयल फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है. सो उनकी अच्छी क्रॉप्स होती हैं, वो साइड बाय साइड जो ग्रासी एरिया वो उनके कैटल्स के लिए भी अच्छा होता है, कैटल्स को फोडर अच्छे से मिलता है. So these are the difference between Mamba and Peter. So you will read that story from your book and you will find out the difference between these, that with the help of these you can know that these means climate, water, soil fertility, land. So these are different at different places, means different place पे different होते हैं. In the first chapter also we have discussed that the resources, these are unequally distributed over the earth. Okay, so let's talk about the first, land. So land is important
लैंड इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। वाई? बिकॉज हम स्टेबल कहाँ पर हैं, किस पर चलते हैं? हम लैंड पर ही तो चलते हैं। लैंड नहीं होगी तो हम कहाँ होंगे? हमारा हाउस है, हमारी फार्म्स है, ठीक है, हमारा स्कूल है, इवन हर जो हम अपनी हर एक्टिविटी करते हैं किसके ऊपर करते हैं? लैंड के ऊपर करते हैं ना। सो लैंड इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स ना। सपोज बिजनेस मैन है जिसको अपना बिजनेस रन करना है, देन ही रिक्वायर्ड लैंड। एक फार्मर है जिसको फार्मिंग करनी है, देन ही नीड लैंड। ओके, आप अपने लिए सोचो, स्कूल है, घर है, तो लैंड इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स ना। सी बेटा, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड दैट इज लैंड रिसोर्स. We know very well that land is a important resource because we use land in various purposes. Okay, see, first, 30% to total area of our surface covered by land. I told you earlier also that this 30% area is covered by land and that is fixed, that is limited. Okay, next thing, some parts is not habitable, means जो 30% जो एरिया है, अब ये जो 30% जो एरिया है, अब इसमें भी क्या है, कहीं पर कुछ पार्ट में माउंटेन्स है, ठीक है, कुछ पार्ट में बहुत ज़्यादा डेजर्ट है। डेजर्ट आप ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई टेम्परेचर है। एंड इन 7th क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट ना। कि जहाँ पर कोल्ड डेजर्ट मीन्स बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और पूरी की पूरी स्नो फैल जाती है जिसपे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर भी क्रॉप्स को ग्रो करना और सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है ना। वी कैन नॉट सर्वाइव देयर। सो वहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन नहीं होती ना। सो पॉपुलेशन नहीं होती मीन्स हम वहाँ पर नहीं रह सकते, तो यही होता है हैबिटेबल। हैबिटेबल मीन्स जहाँ पर हम इजिली रह सकते हैं, मीन्स सर्वाइव कर सकते हैं। बट ये जो बहुत ज़्यादा जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, डेजर्ट एरियाज हैं, वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है. So some parts is not habitable. So in this 30% that areas also are there now. So these are not available for survival, means for habitable. Okay. Various parts have different uses. Means जो land के जो various parts है, like लैंड्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जो हमारे माउंटेन्स है वो भी लैंड में आएंगे, ठीक है, जो हमारे प्लेट्यूज है वो भी लैंड में आएंगे हमारे, जो हमारे प्लेन एरियाज है वो भी लैंड में आएंगे हमारे, ठीक है, और जो हमारे कोस्टल प्लेन एरियाज है सबको किस में आएंगे, हमारे लैंड में, और जो डेजर्ट है वो भी। अब जो प्लेन एरियाज है मीन्स प्लेन एरिया जो पार्ट है दैट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ओके। जो माउंटेन एरियाज है दैट इज सुटेबल फॉर फॉरेस्ट्री, ओके। जो हमारे प्लेट्यूज है, प्लेट्यूज में क्या होता है, मोस्टली जो मिनरल्स है वो मिलते हैं, सो दैट इज सुटेबल फॉर माइनिंग, ठीक है। सो इन दिस वे these all means parts of land are uses for different ways, like mountains हमारे पार्ट है, plains है, desert है, etc. So understood beta up to here? That is why this land is important, because we need land for everything, for setting up building, for setting up industries, for building house, for building roads, okay. Now next thing, if we talk about land use, so land use आप वैसे भी बता सकते हो कि आपके लिए लैंड का यूज़ क्या है, लैंड यूज़ किस लिए करते हो आप। सपोज आपके जो पेरेंट्स है फार्मर है, देन दे नीड लैंड फॉर फार्मिंग ना। बिजनेस पर्सन है, देन फॉर सेटिंग अप देयर इंडस्ट्री दे नीड लैंड। एंड सपोज कि आपको हाउस बनाना है, देन ऑल्सो यू रिक्वायर्ड लैंड ना, मीन्स रोड्स बनाने हैं, देन ऑल्सो यू रिक्वायर्ड लैंड. सो देर आर सो मैनी यूजेस ऑफ लैंड. सो लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, ओके, मीन्स फार्मर्स दे नीड एग्रीकल्चर, सो फॉर दैट एग्रीकल्चर दे नीड लैंड ना. फॉरेस्ट्री मीन्स जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज होते हैं they are also on land na. So for forestry purpose also, if we want to grow more and more trees, then also land is required, because जो forest हैं, जो trees हैं, उनको base कौन provide करता है, land ना. So next thing, mining activities means जो हमारे minerals होते हैं, most of the minerals they are found in plateaus area. So plateaus area is a part of land. So mining activities के लिए buildings,
हाउसेज को बिल्ड करने के लिए लोगों को नीड होती है। सो फॉर बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स को बिल्ड करने के लिए, एंड नेक्स्ट इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को बिल्ड करने के लिए मीन्स टू setting up these industries also we required land. So understood that what are the land uses? We need land for many uses. Okay, now next thing, land use in determined by various factors. means जो land का use है उसको कौन determine करता है? There are various factors. Okay, so firstly remember one thing, that two factors are there, those determined the land use, कि land का use कैसे होना है। टू फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट हमारे फिजिकल फैक्टर्स, सेकंड हमारा होता है ह्यूमन फैक्टर्स। फर्स्ट फिजिकल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स बेटा दिखने में, कि वो बाहर से दिखने में कैसा है, उसका फिजिक्स कैसा है, ठीक है, कि उसके हाथ कैसे, पैर कैसे, हाइट कैसी है, ऐसे हम एक पर्सन के फिजिक्स को बता सकते हैं। बट अगर लैंड की फिजिक्स की बात करें कि लैंड की टोपोग्राफी कैसे, मीन्स माउंटेन है, प्लेन्स है, या फिर प्लेट्यूज है, ठीक है, कि उसकी फर्टिलिटी कैसे, मीन्स बाहर से देखने में जो हम बता सकते हैं, तो फिजिकल फैक्टर लाइक टोपोग्राफी मीन्स कि प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है, मीन्स लैंड है जो उसका लैंड का लेवल कैसा है, कि जो माउंटेन एरिया बहुत जहाँ पे स्टीप स्लोप है तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते ना, उस लैंड का यूज हमें दूसरे पर्पज के लिए करना होगा। ठीक है, ऐसे सॉइल को देखेंगे कि जहाँ पे फर्टिलिटी है, सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है जिस लैंड पे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर ना। जहाँ पे लेस फर्टिलिटी है, दैट कैन यू यूज फॉर इंडस्ट्रीज ना। सो अंडरस्टूड हाउ द सॉइल डिटरमाइन द लैंड यूज, कि सॉइल की फर्टिलिटी है देन वी यूज दैट लैंड फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल की फर्टिलिटी नहीं है देन वी कैन build their house, build their industry. Okay, topography also in the same way, because plain areas are more suitable for agriculture, mountain areas हैं तो वहाँ पे land का use agriculture के लिए कम होगा। Okay, next thing, climate also, if we talk about the desert area, cold desert, hot desert की temperature, जहाँ पे climate बहुत harsh होगा वहाँ पे land का use बहुत लेस होगा, और जहाँ पे क्लाइमेट सुटेबल होगा वहाँ पे लैंड का यूज ज़्यादा होगा, मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे, इंडस्ट्रीज ज़्यादा सेटअप होंगी वहाँ पे, फार्मिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे। ओके, एंड मिनरल्स ऑल्सो, कि जहाँ पे जिस एरिया में जिस लैंड पर बहुत ज़्यादा मिनरल मिलते हैं उन एरियाज को लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, लोग माइनिंग के लिए ऑफकोर्स, कि वहाँ पे उनको मिनरल्स मिल रहे हैं तो माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी ना उन एरियाज में। उनमें हम हाउस तो बिल्ड नहीं करेंगे, ना ही हम वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे, बिकॉज वहाँ पे मिनरल्स है, हमें मिनरल्स माइनिंग से ज़्यादा बेनिफिट है देन वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर मिनरल्स ना। सो अंडरस्टूड बेटा दिस, कि these factors, topography, soil, climate, minerals, these determine the land use, कि on the basis of these we use the land. Okay, next thing, human factors like population, कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, सपोज अगर पॉपुलेशन स्टार्टिंग में कम है तो लैंड का यूज कम होगा, मीन्स लैंड पर हाउसेज कम बनेंगे, क्योंकि कम पॉपुलेशन है, कम लोग हैं तो उनको लेस हाउसेज की नीड है, देन दे बिल्ड लेस हाउसेज एंड दे कैन यूज द रिमेनिंग लैंड फॉर फार्मिंग, ओके, फॉर अदर यूजेस। बट व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज, जो लैंड यूज है दैट विल बी चेंज्ड ना। कैसे, कि अब जो हाउसेज हैं उनकी नीड ज़्यादा होगी, तो जो एरिया बचा हुआ था उस पर वो क्या करेंगे, हाउसेज को बिल्ड करना शुरू कर देंगे, और एग्रीकल्चर के लिए लेस लैंड बचेगी। सो दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस पॉपुलेशन ना। टेक्नोलॉजी ऑल्सो, कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, सपोज कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो लोग क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ठीक है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे तो लैंड यूजेस बढ़ जाएगा ना उससे भी। सो दीज फर्स्ट physical factor and second human factors, these determine the land use. Okay, now the next thing, if we talk about the land types, so there are two types, first private land and second community land. Private land means मेरी इंडिविजुअल, कि जिसका ओनर मैं हूँ, ठीक है, कि मैं उसका मालिक हूँ। सपोज आपका जो हाउस है, आपका जो फार्म है, या आपने कहीं पर जो आपकी फैक्ट्री है, वो सब किसकी है, आपकी प्राइवेट लैंड है, मीन्स जिसका एक इंडिविजुअल ओनर होता है, ठीक है, या फिर दो चार लोग मिलकर भी एक इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं ना, तो वो भी किस में आ जाएगी, हमारी प्राइवेट लैंड में। प्राइवेट लैंड मीन्स इनके इंडिविजुअल्स ओनर होते हैं, ठीक है। कम्युनिटी लैंड मीन्स वी कैन शेयर दैट लैंड एज अ कॉमन, लाइक आपका जो नेबरहुड है, सपोज आपके नेबरहुड में कोई पार्क है, ठीक है, कोई टेम्पल है, देन यू कैन शेयर दैट
commonly ना, so that called common community land. So community land means like हमारी forestry है, ठीक है, तो जिसको हम कॉमन पर्पजेज के लिए यूज करते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, अदर नेम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. ओके, सो दिस इज द अनदर नेम ऑफ दिस community land. Now next thing, up to here we have learned about that our surface 30% covered by land, and we use that land in many purposes. And next thing, land use determined by two factors, physical factor and next is human factors. And next thing, we have learned about the land types, that private land and community land. Okay, if now if we talk about the challenges, that what type of challenges is there in, if we talk about this land use. So beta, first thing, we know very well that land is limited, land is fixed, only 30% part of our earth is covered by land ना. अभी land तो fixed है, but challenge is there that population is not fixed. population तो fixed नहीं है ना, population तो क्या है, increase हो रही है, but land is fixed. अब ये जो 30% लैंड है, ठीक है, अब इस पे पहले बहुत कम पॉपुलेशन थी, ओके, बट नाउ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है. सो लैंड यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है. मीन्स लैंड को अगर हम ये कहें कि ओवर यूज हो रहा है ना अभी. सो सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. हाउ, व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड देन देयर डिमांड आल्सो विल इंक्रीज्ड ना. They need more houses, they need more industries, they need more farming activities. So see, but land is fixed na, and differ in quality also. And second thing, with this land earlier also we have discussed, जो उसकी quality है that is also differ. ऐसा नहीं है कि हर जगह पे एक ही सेम क्वालिटी, मीन्स फर्टिलिटी सॉइल की हर जगह पे सेम है, क्लाइमेट हर जगह पे एक जैसा है, ठीक है, कहीं पर रेड सॉइल ज़्यादा है, कहीं पर ब्लैक सॉइल ज़्यादा होती है, कहीं पर लेस फर्टिलिटी होती है जैसे डेजर्ट एरिया में, कहीं पर अच्छी फर्टिलिटी होती है जैसे प्लेन एरियाज में. सो जो उसकी क्वालिटी है वो भी डिफर है. सो फर्स्ट चैलेंज की इंक्रीज जो पॉपुलेशन है, इंक्रीज पॉपुलेशन. एंड सेकेंड थिंग, जो उसकी क्वालिटी है वो भी डिफर है. सो इससे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. सी, लैंड डिग्रेडेशन, कि लैंड डिग्रेड होना शुरू हो जाती है जब हम बार बार ओवर यूज करते हैं लैंड को, तो जो उसकी क्वालिटी है वो कम होती चली जाती है, मीन्स उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती चली जाती है, इसको लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं. ठीक है, लैंडस्लाइड्स, इन 7th क्लास ऑल्सो वी हैव लर्नड अबाउट दिस लैंडस्लाइड्स, कि लैंडस्लाइड्स की लैंड के कुछ पार्ट जब वाटर के साथ या फिर विंड के साथ शिफ्ट हो जाते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा स्पीड में या हैवी रेनफॉल होता है या वाटर ऊपर से स्पीड से आता है या फिर तेज हवा चलती है तो कुछ पार्ट्स खिसक जाते हैं, तो लैंडस्लाइड्स. सॉइल इरोजन ऑल्सो, की सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो विंड के साथ या वाटर के साथ जब शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, तो सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाता है. एंड डेजर्टिफिकेशन में जब बहुत ज़्यादा हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि स्टार्टिंग में क्रॉप्स ज़्यादा होती हैं, बस बहुत टाइम मीन्स आफ्टर 20-25 ईयर्स की लैंड बिल्कुल ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कि एज अ बैरन लैंड वो कन्वर्ट हो जाती है. सो दीज टाइप्स प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दिस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ओके, बिकॉज कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, केयरलेसली यूज़ करते हैं लैंड का, बिना सोचे समझे यूज़ करते रहते हैं. सो दीज प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मिसयूजिंग ऑफ लैंड. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss that how we can conserve this land resource, how we can save this land. Now up to here it is clear that how much part of our earth covered by land, what are the uses of land, what are the factors those determine the land uses, and next thing, types of lands and some challenges that are in front of the land uses. Okay beta, so if you want to take screenshot you can take.